Good afternoon, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, once again in front of you with my new video on the third part of lesson Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. As the title of the lesson is A Long Walk to Freedom, in the same way this lesson is also very long and very vast. So that is why I'm just making it in parts and parts. So today we will discuss the third part of this lesson. And in the first part, if you remember, we discussed about apartheid system, right? The system which is based on the racial discrimination. In the second part was that his speech, right? What kind of speech did he deliver? Nelson Mandela, when he became the first black president of South Africa. उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था, right? क्या था? The blacks were considered as outlaws. There was no freedom. There was no rights for the blacks. They were not considered even as common human beings, right? And that in the last line of his speech, what did he say? Let freedom reign. अब हर जगह reign मतलब किसी चीज़ का prevail करना. Let freedom reign everywhere. अब जो है साउथ अफ्रीका में, हमारे कंट्री में, there will be only freedom and freedom. So after finishing his speech, when they looked at the sky, right, there was a military force, display of military force. Display of military force किस लिए किया था? Not as a power, not as a military power, but it was their loyalty, their declaration of their loyalty to the newly formed democratic government, if you remember, right? Newly formed democratic government. याद रखना है, newly formed, fairly and freely elected. This was the specialization of that government. क्योंकि वो कि खाली किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों की नहीं थी. It was a fairly and freely elected. It was a democratic government, right? So everybody was paying their respect because a history was created on that day, right? And the next was, on that day, two national anthems were sung. दो national anthem गाए गए थे. One of the blacks and the other was of the white people. लेकिन क्या था ना, white लोगों को उनके आता था, ना black लोगों को उनके आता था. अगर white लोगों की उनकी power थी, the blacks were being ruled over by the whites, तो blacks के मन में ऐसा नहीं था कि they had respect for them. So nobody knew the lyrics of their national anthems. But see the heart, see the determination of that president. What did he say? कि I'm sure that now the people will learn the lyrics by their heart. अब उनको अच्छे से याद हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि now he knew that now there will be only freedom, there will be togetherness, there will be equality, there will be freedom, fraternity, liberty, right? Especially equality. In the next part, what he's saying, he was talking of the apartheid system, the system of this white skinned people, जो इनके against किया गया था blacks के. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वो जो apartheid system था, वो that has been overturned, वो हमेशा के लिए उसका तख्ता पलट कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया. But it was replaced, और उसकी जगह क्या आ गया है? It was replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people. ठीक है, जो उनका सिस्टम था, apartheid सिस्टम था, वो that was overturned and that was replaced by a system. कैसा सिस्टम, कैसी गवर्नमेंट which recognized the rights and freedom of all peoples. ठीक है, जो कि उसके अधिकार, उनकी फ्रीडम, सबको एक जैसा अधिकार देगी, right? Regardless of their color and skin. Now there will be no discrimination, there will be no privilege. वो किसी भी तरह से उनकी color and skin को नहीं देखेंगे. Fine? And now, obviously, he became the president, first black president. But जो उसने इतनी बड़ी आज़ादी ली थी, वो क्या थी? It was not only his contribution. हम कोई भी स्पेशली बड़े काम जब हम करते हैं, वो हम अकेले नहीं कर सकते. एक आदमी की डिटर्मिनेशन चलती है, एक आदमी का जिसको कितने करें हिम्मत होती है, लेकिन उसको बाकियों का साथ लेना पड़ता है.
उसके बिना हम नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान ने भी अगर अपनी फ्रीडम ली है तो दैट वाज नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ वन मैन्स और टू पीपल्स देयर सैक्रिफाइसेस। सो नाउ ही इज रिमेम्बरिंग ऑल दोज पीपल हु हैड लेफ्ट, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनको याद कर रहा था वो, दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। ठीक है, जस्ट अगेन उसकी उनका जो नेल्सन मंडेला का एक प्योरिटी ऑफ हार्ट देखो कि वो अपने उसमें अपने अहम में या अपनी जीत की खुशी में इतना नहीं खोया कि वो उन लोगों को याद करना भूल गया। तो अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। राइट, वो क्या कह रहा है कि ना तो उनका जो सैक्रिफाइस था वो काउंट किया जा सकता है, ना ही उसको रीपे किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स जब हमारे लिए कोई कुछ करता है, राइट, अगर हम कहें कि उसका हम बदला चुका सकेंगे, हम कभी बदला नहीं चुका सकते। हम किसी टू सम एक्सटेंट वी कैन, राइट, सपोज किसी ने मेरे पैसे से हेल्प की है, लेकिन हम कहें ठीक है ना, तू ले ले पैसे वापस, कोई एहसान झाड़, बट जिस मन के साथ, जिस इंटेंशन के साथ हम किसी के लिए काम करते हैं, वो इंटेंशन और वो हार्ट दैट कैन नेवर बी रीपेड। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी शुड ऑलवेज बी फुल ऑफ thankful heart for the people, for our surroundings, for this universe, right, for whoever is involved in our life. I felt that day, as I have also many other days, I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो आज मेरे साथ नहीं है इतना बड़ा दिन देखने के लिए, राइट, ये देखने के लिए कि आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारे जैसे लोगों को हक है, वहाँ वो तालियां बजा रहे हैं, वो खुश हैं। और खाली वही नहीं, हमने उन लोगों को भी अपने साथ शामिल किया है जिन्होंने हमारे ऊपर टॉर्चर किया था, जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था, जिन्होंने हमें इंसान मानने से मना कर दिया था। एंड प्लस many more distinguished people, VIPs from many more nations had come to pay their respect. So he was feeling, थोड़ा सा वो उसको लग रहा कि काश वो लोग भी आज होते कि उनकी सैक्रिफाइस, उनकी मेहनत आज वो दिन ले आई है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. ठीक है, लेकिन कह रहा है जो हमारे साथ हुआ था, उन्होंने हमारे बहुत ही गहरे और कभी ना खत्म होने वाले हमें वो जख्म दिए थे। ठीक है, वो तो एक पता ही है दिए थे, राइट, लेकिन वो साथ में क्या कह रहा है, बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, लेकिन जो हमारे ऊपर वो टॉर्चर हुआ था, हमारे साथ इनइक्वालिटी का व्यवहार किया गया था, हम उससे परेशान थे। वो तो एक पता, हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो तो होगा परेशान, ये तो हमारा पता है, इंटेंशनल है। हम किसी को, जब हम खुद जानबूझ के किसी को परेशान करते हैं, लेकिन वो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, दे हैड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑल्सो, कि हमारे ऊपर एक अनइंटेंडेड, जिसकी उनकी इंटेंशन नहीं थी, उनको नहीं पता था कि वो जो हमारे साथ कर रहे हैं उसका एक और इफेक्ट भी हो रहा है। व्हाट वाज दैट, पीपल ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। ठीक है, वही उसी अपार्थाइड सिस्टम की वजह से, उसी हार्शेस्ट इनह्यूमन सिस्टम की वजह से ऐसे लोग पैदा हुए थे। जो लोग क्या थे, दे हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, they had extraordinary wisdom and they had extraordinary generosity also. करेज, वो हिम्मत कर पाए उनके अगेंस्ट खड़े होने की, और विजडम, वो अपना दिमाग बुद्धि लगा पाए कि हमें कैसे, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू टेक एवरीवन अलोंग विद अस, राइट। एंड जेनरोसिटी, उनकी काइंडनेस भी थी। जेनरोसिटी मीन्स काइंडनेस, दया, कि वो सेम चीज वाइट लोगों के साथ नहीं करना चाहते थे। दिस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई हमारे साथ गलत करे, उसके बाद भी अगर हम किसी के साथ गलत ना करें। सो दिस वाज देयर जेनरोसिटी, राइट। एंड व्हाट ही इज सेइंग, इट इज फ्रॉम दीज कॉमराड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहे सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से, कुछ नाम दिए गए आपके लेसन में, आप पढ़ सकते हो। मीनिंग ऑफ करेज, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, राइट। जब हम अपनी लाइफ, जब हम अपना टाइम, जब किसी आइडिया के लिए देते हैं, आइडिया ऑफ क्या था, इक्वालिटी था, आइडिया ऑफ फ्रीडम था, आइडिया ऑफ व्हाट, आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, एवरीथिंग, नहीं। तो कह रहे मैंने उनसे ही आई लर्न द न्यू मीनिंग ऑफ करेज, द ट्रू मीनिंग ऑफ करेज। करेज का मतलब ये नहीं है कि हम, करेज मीन्स कि
हम किसी को जवाब दे पा रहे हैं, हम किसी को अगर अपनी नॉर्मल भाषा में शट अप कॉल दे रहे हैं, किसी को चुप करवा रहे हैं, किसी को आगे सामने, दिस इज नॉट करेज कि जो मेरा मन करेगा मैं ही करूँगा, मैं वही करूँगा या करूँगी, दिस इज नॉट करेज. व्हाट ही सेइंग, करेज इज to have that wisdom, to have that potential to do the right thing at the right time. करेज का मतलब ये नहीं कि हमारे में हिम्मत है, हम किसी को भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज नॉट करेज. जो वाइट लोग कर रहे थे, दैट वाज नॉट देयर करेज, दैट वाज देयर इनह्यूमैनिटी, दैट वाज देयर व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ करेज. उनकी एक कायरता थी वो. ठीक है, एक इंसान अगर दूसरे इंसान के साथ गलत करे तो वो क्या है, वो कायरता तो है. चाहे वो हम किसी भी लालच में कर रहे हैं, चाहे पावर की लालच में कर रहे हैं, चाहे पैसे की लालच में कर रहे हैं, चाहे नाम की लालच में कर रहे हैं. So that was their kayarta. This was not their courage. Courage is what? To stand up against that. Right? The black people had the right courage. So I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing his strength, resilience that defies the imagination. Resilience जिसको बोलते हैं कि हमें किसी गलत चीज के अगेंस्ट खड़े होने की जो हमारी हिम्मत होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम रिसिलियंस बोलते हैं. आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. करेज का मतलब ये नहीं कि हम किसी से डरते नहीं है, राइट. दिस इज नॉट करेज. करेज इज टू विन ओवर दैट काइंड ऑफ फीलिंग, टू विन ओवर दैट फियर, जो एक सही काम करने का हमारा फियर है. अगर हम गलत काम करने से डरते हैं ना, तो हमारे में इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि हम सही काम कर सकें. कहते मतलब मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो चुप ही रहता हूँ, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है. अगर किसी हम अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ खड़े होना, उस आइडिया के. अभी उसने कहा ना कि दे हैड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, राइट. दैट इज द करेज, राइट. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. No one is born hating another person because the color of skin. कोई भी जन्म से किसी के लिए नफरत लेके पैदा नहीं होता, और वो भी किस लिए, कि उसकी स्किन का कलर अलग है. It is something ridiculous, it is something nonsense, it is something inhuman, or he had already said that it was the harshest system. Or his background or his religion, people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity. So he is remembering his days of prison. कि मैं इतने, मेरे लिए वो कितने काले दिन थे, कितने दुख भरे दिन थे, इसलिए उसने उनके लिए क्या यूज किया, ग्रिमेस्ट डेज, ग्रिमेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है. लेकिन वहां पर भी जब हमारे साथ इतना गलत, मतलब ऑब्वियसली जेल में कैसा व्यवहार किया जाएगा उनके साथ. ठीक है, अगर हम किसी के ऊपर रूल कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं चाहेंगे, अगर हमारा दिल दिमाग ही ऐसा है कि हमारे अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाए. और नेल्सन मंडेला ने तो ऐसी हिम्मत की थी, उसके साथ और हजारों लोगों ने की थी. सो ही सेइंग इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, तब भी जो है जब मेरे साथ इतना गलत होता था तो मैं क्या करता था, एक गार्ड, जो एक वहाँ पर कोई गार्ड खड़ा है, कोई गेट कीपर है, या कोई मुझे थोड़ा सा मेरे लिए कुछ हेल्प करता था, मैं उसमें भी ह्यूमैनिटी देख लेता था कि नहीं, टाइम्स आर नॉट बैड, स्टिल द ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट, राइट. तो दिस इज अगेन हाउ वी कैन कीप आवरसेल्व्स गोइंग ऑन एंड ऑन. ठीक है, हम कैसे अपने आप को चलता रख सकते हैं जब हमारे पास ये करेज हो, जब हमारे पास ये हिम्मत हो. yes we are walking on the right path, which is the path of humanity, which is the path of every human being. I were pushed over limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that cannot be hidden, that can be hidden but never extinguished, right. कि जो इंसान की अच्छाई है वो थोड़ी देर के लिए दब सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकती. कि जो मैंने एक हिम्मत की थी, जो मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करके रहूंगा, इस सिस्टम को आई विल ओवरटर्न दिस सिस्टम. व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू रिप्लेस दैट सिस्टम विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, with a system which will talk of rights and freedom of all peoples regardless of their color and skin. कहता वो जो मुझे एक थोड़ी सी इंसानियत वहाँ पर दिखाई देती थी, उससे मेरी हिम्मत और बढ़ जाती थी कि doesn't matter if everybody around is just
I mean, just breaking my heart, breaking my courage, or just putting me aside. But I will not stop myself, because he knew his aim was clear. उसके पास अपना एक जिसको लक्ष्य हिंदी में बोलते हैं, उसके पास एम, अपना मोटो, अपना गोल था कि मुझे लाइफ में क्या करना है. एंड दिस इज व्हाट हैपन्स, दिस इज व्हाट शुड बी अ डिटर्मिनेशन, कि अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं तो हमें किसी को डराने की भी ज़रूरत नहीं है. We have to simply work as, we have to simply live as simple human beings, right? Nothing is greater than, nothing is better than simplicity. वो कहते हैं ना, वो simple living and high thinking. So ultimately we all are equal, ultimately we all are one. This was the kind of message, was the message which Nelson Mandela gave in his speech when he gave his first speech as the first black president of South Africa. Just keep it in mind. And apartheid system, right, which was the system which really tortured the blacks, right? So I would be meeting with 1 or 2 more videos of this lesson, right? So till then please keep on reading this lesson, use dictionary. Last video में मैं आपको एक बार फिर से इसकी vocabulary बता दूंगी, and keep on revising this. और इस चैप्टर को फील करने की कोशिश करनी है कि इस दुनिया में क्या क्या होता है और हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है. थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.